ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਇਸਲਾਹ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा लगा है अपना अमन नज़ीर साहब गुफ्तगू का माहौल ते गुफ्तगू दे सवाल जवाब? ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਛਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਉਹਨਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣਾ। नहीं साहब पब्लिक है बड़ी खुशी नाल ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਤਲਾਵਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਅਰਸਲ ਰਸੂਲਹੁ ਬਿਲਹੁਦਾ व दीन अल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह। बिल्कुल ਉਹ ਇਸ ਗਲਬਾ ਕਾਮਲਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਤਖਤ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ निजाम चलेगा और सारी दुनिया देखेगी तो पता चल जाएगा कि गलबा होया है। और फिर अचानक हज़ूर दी तवज्जो उस हदीस की तरफ चली जाती है युदफन मई फी कबरी दी जी। तो वो फरमाते ने कि मिर्जा साहब तो उत्थे दफन नहीं होए, लेकिन मेरा जिहड़ा विसाले अकबर है वो फिर मदीना शरीफ विच होके ते उत्थे रोज़ा रसूल दे करीब, हालांकि नहीं बल्कि उत्थे जगह है ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੁਦਫਨੁ ਮਈ ਫੀ ਕਬਰੀ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਟੋਟਾ ਉਠਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ लेकिन असल ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं कि मिर्जा साहब ने भी यही गल कही हुई है कि वो जलजला जो आने वाला मेरी जिंदगी में ही आएगा, कि मैं मरूंगा नहीं जब तक वो जलजला ना आ जाएगा। आमद नज़ीर साहब आया, लेकिन ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਖੁਤਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਖੁਤਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ MD ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ 5 ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸਰਾਹਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਖੁਤਬੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਇਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਚਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਲਬਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਲੀਲਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਲਬਾ ਹੈ? ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੀ ਗਲਬਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਖੁਤਬੇ 3 ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ MD ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਇਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਟੋਟਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਖਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਸਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਟਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ख्वाहिश है? अच्छा, अभी एक और कमेंट आया बड़ा जबरदस्त। वो कहते हैं अगर अमन नज़ीर और बिलाल जैसे पावरफुल मनाजिर जमात में आ जाए तो जमात की तबलीग कितनी पावरफुल हो जाएगी? ये बार बार देखें, ये पावरफुल का लफ्ज मैं कह रहे हैं पावरफुल ते जरा रोशनी पा दिया जी। मैंने कहने तो दो कुछ ये जो मेरे ख्याल में तो सोनी साहब जो है ना, ये खुद आ जाए ना तो ये सबसे पावरफुल हो जाएंगे। मैं यकीन करें, मैं आपकी बात पे मैं सच मानता हूँ कि इस इंसान के पास उससे ज्यादा हकीकी दलाइल, बेहतर दलाइल होंगे उससे ज्यादा। तो मैं समझता हूँ सोनी साहब जो है वो अगर आ जाए ना, मैं तो उनको वैल्यू दूंगा ज्यादा।
बात बस सोनी साहब उनको पर्चियां भी देते हैं। बेशक ये वकी से बोलते हैं, लेकिन कुछ अकल की बात भी कर जाते हैं। मैंने कहा बस एक आ जाए चलो एटलीस्ट। नहीं मैं तो उसको बुलाऊंगा जो मेरा है। एमजी भाई मेरी भी एक बात ऐड कर लें यार। जी जी एमजी भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आमिर नज़ीर को किस लिहाज से पावरफुल समझता है? गाली गलौज से या बदजुबानी से या जुबान से या चीखने चखाने से, किस लिहाज से उसको पावरफुल समझता है? ये तो सोनी साहब बता सकते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। पावरफुल इस वजह से है कि वो उसके पास इतनी ताकत है कि वो बात डिबेट करते हुए, मुनाजरा करते हुए अपने अकायद बदलता चला जाता है। ये ताकत है उसमें। और यहाँ तक कि शैतानियत भी कर जाए तो वो भी पावर उसकी में आ जाती है चीजें। वो किसी के कपड़े भी कतरवा दे और वो उसको क्या कहते हैं जी, वो सुन्नत करार दे दे। ये इन्होंने टोनी साहब का नाम लिया है, ये टोनी कौन है? ये है जनाब दूसरा। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਲਿੱਪ। ਜੀ ਆ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾਲ। अच्छा, मैंने इंज लगा किसी और बंदे का नाम ले। आमिर नज़ीर इतना अहम है कि जमात अहमदिया वाले आमिर नज़ीर ਨੂੰ मौजू बना के गुफ्तगू करते रहते हैं। बड़ी हैरानी की गल। राणा साहब थल्ले कह रहे ने कि ये तारीखी ऑडियो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ जी। अच्छा, वो ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। नहीं करो तुसी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾੜਿਆ ਨਾ ਦੂਸਰਾ, जी 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 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ जी ਇਹ ਦੁਨੀਆ इधर दी उधर हो जाए, दुनिया का आखिरी दिन भी अगर रह जाए तो अल्लाह ताला ये काम जरूर करेगा। हाँ, वो दिन ही लंबा हो जाएगा। दिन लंबा हो जाएगा। मैं क्या मिर्जा साहब ने भी किया है कि अगर मैं ईसा परस्ती दे बुत नूं ना तोड़िया, अगर मैं दुनिया दे उत्तों ईसा परस्ती दे बुत नूं ना तोड़िया ते जेड़े काम वास्ते मैं इस दुनिया दे उत्ते आया और ना कर सकिया ते फिर मैं झूठा। हाँ बिल्कुल। ते इस ये दोवे गल्लां रला के ते जमाते अहमदिया दा कोई बंदा दस सकदा है भी दोवे गल्लां हो गईयां ने या इन्हां च इक हो गई, एक रह गई। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। मतलब है कि मिर्जा साहब ने तो यह भी किया सी कि वो 15 महीने में ना मरा तो मेरे गले में रस्सा डालकर रस्सियों मुंह काला करके मैनू तुसी गलियां च घसीटना, पूरे शहर में घुमाया जावे। अब्दुल्ला आसम दे बारे क्या है और ममदी बेगम दे बारे क्या है, वो ते सुल्तान बेग दे बारे क्या है, आसमान पर निकाह हो चुका। जलजले दे बारे क्या है कि जलजला मेरी जिंदगी च मेरे मुल्क विच आना है। बहुत सारी गल्लां ने। मैं सिर्फ एक मसां कह कि मैं ईसा परस्ती दे बुत नूं ना तोड़िया ते मैं झूठा। मैं इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੇਜਾ ਵੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਗਈਆਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਾਈ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਵੀਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਵੀਲ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਦਾਇਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਵੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। 2028 ਤੱਕ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਵੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਵੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਵੀਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ। वैसे रसूल अल्लाह ने 1400 साल पहले क्या सी कि ईसा इब्न मरियम तुम्हारे दरमियान जरूर उतरेगा। आगे रसूलुल्लाह दे आते ताकते रसूलुल्लाह नु पै जाओ, इस्लाम आ गया, पै जाओ रसूलुल्लाह नु पीछे मोहम्मद जरूर आएगा, अजे तक तो आया नहीं। तुसी नाम मनो हज होगा, हज होया ही नहीं। सारे बंदे बकरियां फड़ के टिंडा करा के टुर पे तो उथे गए तो उथे अपना मक्का वाले का चलो वापस चलो कादियान च जेड़ा हज थे हैं जी, नाले ने कहा चलो वापस भाई अगले साल आना, इस दफा नहीं। खजूरां नु क्या कि खजूरां दे जेड़े ने ना लाओ पौधे जेड़े ने तो खजूरां ही ना लगियां तो गो कही था को मैं को किसान है, मैनू बहुता पता है, कोई ये ताड़ी मर्जी सी। तो इस तरह नबी इस तरह ही करते ने सारियां दा। अगर देखो हिस्ट्री ते है क्लिप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ। ਜੀ ਜੀ, ਸਭ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। जिन्हें लियाना ले आओ, जिन्हें कज़ाब दजाल कहना कज़ाब दजाल कह दी, अपनी अपनी मर्जी है। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ किन्ने मजबूर कीता, जिन्हें कहना कज़ाब है, दज्जाल है, झूठा है, जिन्हें किलना हो किले, जिन्हें जफा पाना जफा पा ले। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਬਸਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਸਰਾ ਵੀ है कि अगर जमात के पावरफुल मनाजिर ट्रुथ सीकर मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों की तब्दीली कैसी हो। ट्रुथ सीकर ते मिर्जाई रहे ते चंगा। नहीं बंदा होना चाहिए इस्लाम च भी आइंदा होना चाहिए जेड़ा अपनी जिद ते कह रहे। आप मान गए हैं, हाँ मान गए हैं, अगला भावे कुछ भी ना मन्या बिल्कुल। अच्छा मैं ना एक वैसे पाकिस्तान आजकल इस्लाम नु बड़ी मार पैन रही है। साध हुसैन रिजवी आप मान गए हैं जड़ा ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या। तो चीखा मारते पे ने सारे मुसलमान जड़े ने मर गए आ, मुसलमानों का मुल्क नहीं। उन्होंने पूछे वो कानून नु क्यों नहीं मानते, आइन नु क्यों नहीं मानते, वो नहीं मानते पे। देखो आमिर नज़ीर साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? मैं कहने लगा सी कि मैं देख ते ਲਈ ਸੀ हुसैनी साहब ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ, क्योंकि वो भी वैसे चीज़ां ते है ही नहीं तकरीबन, पर आज बिल्कुल वो मेरे सामने ना कोई रेफरेंस। वैसे अपना तारा चौहान साहब आप अभी फरमा रहे थे कि जमात जो है वो आमर नज़ीर का ही जिक्र करती रहती है। जी जी, सबसे पहले तो हमारी पूरी जमात तो इधर है ही नहीं, 2-4 बंदे हैं। अगर आप जंबा की बात करें तो वो ठीक है, आप 1-2 ही हैं, आप जिक्र करते होंगे। आमिर नज़ीर जो है हमारा एक बंदा, वो इसके हाथ वो चढ़ गया, वो बेचारा क्या नाम है वो जो कादियान के जो मौलम साहब हैं, वो 2 दिन तो औरते बराड़ ला के बैठा हो, वे हो जमीला और नस गई ओदी अपना पतलून गिल्ली हो गई हो, आया नहीं हो और दौड़ गई है। और उसकी बार बार अपना जो ऑडियो सुना रहा है पूरी दुनिया को, ये इस बंदे का हाल है। एक बंदा थोड़ी सी बात उसके साथ हुई है, नज़ूल उसकी क्या है मुझे नहीं पता, क्या किस चीज़ से वो भागा। और सुनो और नस गया जी, पतलून गिल्ली हो गई
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਟਿਕਟਾਕ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੋਰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, या अहमदी मुखालिफ जड़े ने उन्होंने भी करीम है। ये गलत आप कह रहे हैं। जमात अहमदिया की हरगिज़ कोई करीम नहीं है, फिर आपको करीम की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। कर लेते हैं। बात ये है कि जब मैदान गर्म हो, करीम के अंदर बढ़ के रोटियां चेक कर रही है, बस वो करीम यही कम कर सकती है। वो मनसब के एतबार से जो है वो रोटियां ही चेक करते हैं, टटियां चेक करते हैं, उनका काम ही यही है। वो तो फिर बैठ के फ्लैश पे कहते हैं कि आपने संजा कैसे करना है, लकड़ी कितनी लेनी है, लता टंगा सुखे। मेरा ख्याल है हम उसको जो मैंने बात कही है उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। तो देखिए ना, जहाँ पे करोड़ों की जमात हो तो रोटियां तो चेक करें, एक दो बंदे हो तो आप ही जहर खा के मार जाते नहीं, और रोटियां चेक कर थोड़ा जिहा रहन दिओ, दूसरी गल कर लेने आ। असल गल ये है कि एक ते करीम वो है तकद्दस महब, ऐसियां हस्तियां जिन्हां दी जियारत करना, जिन्हां दे नाल हथ मिलाना और जिन्हां नूं देखना बाइसे सादत है, जिन्हां दा जूठा खाना ओ बिल्कुल ऐसा ही है। वो ते इत्थे कदे आवणगे ही नहीं, उन्हां नूं आवना भी नहीं चाहिदा, ना उन्हां दे शाया निशान है कि वो इत्थे आवण। वो तो ठीक है, वो मेरी मुराद नहीं है। लेकिन जेड़ा मैदान कारजार होवे उत्थे जेड़ा भी नुमाइंदगी वास्ते आउंदा, सुनते रही है ना सारी दुनिया। ये उर्दू बोलने वाले तबके दे विच या पंजाबी बोलने वाले तबके दे विच एक ऐसा मैदान है। पुराने वक्तां च हुंदा है कि कोई मुबाहिसा, कोई गुफ्तगू, कोई तबादला ख्यालात किसी बैठक च हुंदा है, ओहदे 5-7 बंदे आ गए तो बड़ी खुशी हुंदी कि चलो जी चंद बंदे आए ने, दो तरफा मौजूआत दे उत्ते गुफ्तगू होएगी। ये मैदान ऐसा है जो 24/7 ही जिंदा रहता है। रात के 3 बजे भी मैशत लगी होंगी है तो दिन के 12 बजे भी महफिल लगी होंगी है। सही गल। और हर तरफों नुमाइंदगी और जवाबल जवाब हो रहे होंगे ने, इस करके इन्हू मामूली मैदान नहीं ख्याल करना चाहिए। बहुत अहम जगह है जिहदे ते अहमदियां दी तरफों भी निहायत उम्दा गुफ्तगू करने वाले माए नाज जिहड़े ने के ना ने जिहड़े कुछ नाले वाले ने, मीर साहब, मीर साहब या मीर साहबान ने, मीर लतीफ हैं, मीर लतीफ मीर लतीफ ने या दूसरे मीर साहब भी ने। और दूसरी तरफों साडे जिहड़े बल्कि मीर लतीफ साहब की अजमत इस तो अंदाजा कर लो कि उन्हां नूं मसीह मौत तो भी ज्यादा कुरान दा इल्म है। उन्होंने सुबह एक सुनाई है गल बड़ी अफसोसनाक जी, वो है कि अगर मिर्जा साहब दा तर्जमा पेश किया जाए तो उहदे खिलाफ अहमदी हुज्जत पेश करन लग पे, तुसीं ये मनोगे तो फिर उत्थे की करोगे। यानी उन्होंने उहदे ते शक पै रहा। उन्होंने ये चाहिए है अगर वो सच्चा अहमदी है तो यह कह के तो बहुत अच्छा है, यो ही तर्जमा है जिन्होंने असीं मनने आ, जो मिर्जा साहब ने किया वही ठीक है। ये है उन्होंने दे शाया निशान होना चाहिए, लेकिन पता नहीं की गल है क्यों इस तरह महसूस करते ने। ते दूसरे ऐस करके वो करीम ने हैं जी, ऐस करके कि जमात अहमदी दी करीम है। हां करीम दी तो वो ठीक नहीं, अब्दुल करीम ने वो करीम, हां अब्दुल करीम मुसलमाना दा लीडर करार दिता है ना मेरे साहब ने। 72 फिरके हैं जो केड़े फिरके दी करीम इत्थे बैठी है, वो अपना फिरका ही दस देना। पता नहीं है 72 फिरकियां दा जेड़ा जिक्र है तो तुसी करदे हो, इत्थे ते कदे कोई ना मेरा अल्लाह मिन जालिक मेरी किथों औकात नहीं। मेरा मकसद है कि अहमदी 72 फिरकियां दा जिक्र करदे ने। नहीं नबी पाक ने कीता साडी की नहीं मिर्जा साहब दो फिरके
ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਫਿਰਕੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। नहीं नबी पाक ने जिक्र किया 73 फिरके मेरी उम्मत के ਜਿਹੜੇ होंगे, ਨਬੀ 72 ਪਾਕ ਨੇ जन्मी हो ਦਾ गए। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ। नहीं आए तो रसूल अल्लाह ने फिर ऐसा मतलब है कि मैं अर्ज कर रहा पता नहीं फिर किदों बना ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। नहीं फिर यह गल हो गई ना जिस तरह मैं मेरे ਇਹੋ साथ अर्ज कर ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ तारक चौहान साहब नहीं कहते वैसे ने भी नहीं पूरा होया। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ। नहीं असली सबने पूरा अगर सब कुछ होया। 72 73 मौजूद ने ऐसे नहीं कहते। है कोई क्लेम करता है तो बड़ी अच्छी गल है, उत्थे अप्लाई करेंगे ਉਹਨੂੰ। नहीं मैं क्या ਜੇ गलत ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ बयानी ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਰੰਗ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। अब जो भी रंग हो रंग कई मुख्तलिफ ने, कोई लाल है कोई पीला नीला। हाँ जी रंगों लगी होया पै जी मसला नहीं। जी जी फरमाओ। अगर 73 फिरके हजरत मिर्जा साहब ने जिसले फिरका बनाया तो पूरे हो गए, या चौहान साहब का फिरका फिर ऐड करो ते मोहम्मद अली का फिरका ऐड करो तो 75 हो गए हैं। खराब हो गया ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। हाँ ਇੱਥੇ ਬਤੌਰ ਖਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 72 ਫਿਰਕੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਨਾਲੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਫਿਰਕਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕਾ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਫਿਰਕਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? 72 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 72 ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੋਟਲ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ 60 ਗਿਣੋ 75 ਗਿਣੋ 80 ਗਿਣੋ पूरा फार्मूला इस्तेमाल करोगे ना ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। नहीं संत शौक होया कि सब दियां ਅਸੀਂ ਕਰੀਮਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਕਰੀਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਰੀਮਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਿੱਬਤ ਸਨੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਨੋ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਚ ਨਹੀਂ ਇਟਵਾ ਬਲਕਿ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੀਦਾ। ਆਖੀਦਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵਕਤ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਜੇ ਵਕਤ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀਂਦ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਇਸਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀ ਬੋਲ ਪਈ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਹੋਸਟ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਐਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਬਰਾੜ ਆਨ ਕਰ। ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਆਨ ਕਰ ਤੇ ਹੋਸਟ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਾਫੀ 150 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਆਨ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾੜ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਘਟਾਣੇ ਸਨ ਛੜੇ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6-7 ਹੀ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 6-7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 8 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 8:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ 1-2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਗਰ ਫਖਰੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਖਰੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਵੀਕ ਡੇਢ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਹਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮਾਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਮੈਥ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੀਏ ਦਿਨੀਆਤ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ये गबी होते हैं, गबी इस वजह से। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਐਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਲਓ ਜਰਾ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਐਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਬੀਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਐਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਬੀਐਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਮੈਥ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅਰਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣਦਾ ਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਟੀਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪੜਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ I myself I did bachelor of education from ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹ ਬੈਚਲਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ B.Ed। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਦਾ ਬੈਚਲਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕਾਹਦੇ ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸੁਣ ਲਓ ਡਿਗਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਝੂਠੇ। ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮੈਮ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਲਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰ ਚ ਲੱਤਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਹਿਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਦਾ? ਜਾਹਿਲ ਆ ਰਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਜਾਹਿਲ ਆ ਰਹੀ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਜਾਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਤੂੰ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ। ਲਾਂਤੀ ਕਰਦਾਰ ਹੈ। ਖਬਰਦਾਰ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾ ਇੰਜ ਸਿੰਘ ਲੋ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਡਬਲ ਬਦਲਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਡੀਓ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਸੁਣ ਲਓ। बुज़दिल ये रिकॉर्डिंग कर रही है ना मीर साहब आपने नीचे? हाँ जी आजम सैफी साहब, ब्रॉड लगा दिया आपने? ब्रॉड लगा दिया, आपका इंतजार
ब्रॉड बंद कर दो। ब्रॉड बंद कर दो? मैंने कहा ब्रॉड लगा लो, आपने लगा ली, बस ठीक है, बंद कर दो। आपने फिर अच्छी बात है, यानी 96 साल के बाद से बंदे हटाने थे, वो मैंने हटा दिया। मैंने कब कहा था कि मैं भी आकर बात करूंगा? मैंने कहा था आमिर नजीर साहब ब्रॉड लगाओ, आपने लगा ली, अब मैं कह रहा हूँ बंद कर दो। इतने मैसेज करे वहां, मैंने कहा हाँ भाई ठीक है लगा ली, नहीं देख लिया, बंद कर दो, बंद ही नहीं कर रहे आप। पता नहीं मैसेज नहीं नजर आ रहे आपको, या क्या हो रहा है? अच्छा, यानी कि आपने इसलिए मैसेज नहीं किया था? गुड, अच्छी बात, ऐसी बात माना करो। हाँ, वो तो आपकी गलत फहमी है, मैंने कहा ब्रॉड लगाओ, आपने लगा ली। नहीं, होस्ट बात करने के लिए नहीं लगाई? ठीक है, मतलब क्या होस्ट बात करूंगा? पजामा गीला हो गया? होस्ट बात मैं कह रहा हूँ, बात आपने मानी। मैं कह रहा हूँ पजामा गीला हो गया। अब हुआ क्या है? चलो जी, हेलो जी, है जो पजामा गीला हो। ये है जी, उन्होंने खुद मुझे कॉल करके तो उन्होंने कहा कि ब्रॉड, मैंने कहा था लगा ली, अब बंद कर दो। क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या वो कह रहे हैं कि मैं वहां से बंदे हटाने थे, क्या मतलब? मतलब डिस्कस करना था कि हम इकट्ठे हुए हैं तो उनको डिस्कस कर तकरीबी मिर्जाई तकरीबी कार्रवाई शुरू कर गैर कानूनी होती है और गैर अखलाकी होती है। इससे आप अंदाजा कर ले कि किसी को बगैर बताए, ठीक है, आपने ये गैर अखलाकी चीज होती है कि और इस मुल्क में आप ये म्यूट करें नीचे। मैं उनका वकील नहीं हूँ, मगर ये मिर्जाई तकरीबी कार्रवाई कब से शुरू कर दी इन्होंने? एक मिनट मैं इनको बताता हूँ, ये जो है ना, जो भी करता है ना इस तरह की वीडियो, अब ये ना कहना कि उसने किया। मैं जो भी मुल्क में आप रहते हैं, आप मुकम्मल कर उस मुल्क के खिलाफ वर्दी है और ये आपके खिलाफ केस हो सकता है किसी की। ठीक, अब आप केस करना चाहें तो कर दें, लेकिन ये जो सैनी साहब की ब्राड पे जो बात आप कर रहे हैं ना, ये भी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि जो होस्ट होता है ना ब्राड का, मैं उस ब्राड का होस्ट सुन तो लेना। जो होस्ट होता है ना ब्राड का, उसके ऊपर जो भी आवाजें आ रही होती हैं वो सारी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रही होती है। वो एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, वो उन्होंने, वो जो बंदा भी आता है वो टिकटॉक का एग्रीमेंट साइन करके ऊपर आता है। चलो फिर ऐसा करें, केस कर दें अगर बेहतर समझते हैं कि उससे मसला नहीं तो उस मिर्जाई मुबल्लिग ने टिकटॉक का नहीं इसने साइन किया हुआ था टिकटॉक पे आने से पहले। मैं कह रहा हूँ कि जो बंदा भी करता है ये अखलाकियात की गिरी हुई हरकत। सैफी मिर्जाई ने वो टिकटॉक का एग्रीमेंट साइन नहीं था किया? वो मैं उसका वकील नहीं हूँ, मगर मैं ये बता रहा हूँ तो क्यों फिर बकवास क्यों शुरू कर दी तुमने, जब तुम उसके वकील नहीं हो? तुम्हें क्या जरूरत है बीच में बोलने की? अंकल, आपने दवाई खाई है कि नहीं? आपके साथ बात ही नहीं हो रही, आप क्यों भाई फिर क्यों तुमने चवल मारी? तुम खुद ही कह रहे हो मैं वकील नहीं हूँ उसका, फिर चवल क्यों मारी तुमने? मैं उस बात की बात कर रहा हूँ कि किसी की रिकॉर्डिंग करनी, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? जिसकी रिकॉर्डिंग की है वो खुद बात करे। तुम कहते हो मैं वकील भी नहीं उसका, तो फिर तुम क्यों ये बात कर रहे हो? मैं वो एथिक वैल्यू बता रहा हूँ। वकील तो है नहीं, तो मशवरा काम का दे जा रहे हैं जबरदस्ती। तेरे को किसी ने मांगा मशवरा? मशवरा अपने घर रख, अपना मशवरा अपने घर रख। सबर साइड भाई, मेरे ख्याल में ये कॉल रिकॉर्ड नहीं है, ये जो ब्रॉड है ना, ये टिकटॉक की जो सब लोग रिकॉर्ड करते हैं और आप और मैं जो बात कर रहे हैं, ये वो ब्रॉड की रिकॉर्डिंग है। व्हाट्सएप पे बात की है मोहम्मद सैन साहब, व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं है, ये ब्रॉड की व्हाट्सएप पे है। सैनी साहब पूछ ले, कॉल व्हाट्सएप पर ही आई है, लेकिन मैं ब्रॉड पे बैठा हुआ था, व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग की है, अलग से रिकॉर्डिंग मैंने अपनी ब्रॉड, इसलिए चमूने बीच में एवं मत बोला करो, अगर नहीं पता होता तो। अभी व्हाट्सएप की रिकॉर्ड कॉलिंग, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? उसे ये होता है कि बाजी सफिया ने आपको दवाई बात बताना चाहते हैं उसको ना कॉल करे। चौहान साहब, आपको बाजी सफिया ने दवाई दी है कि नहीं, ये बताए। दवाई तुसी दियो अपने खलीफा ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। नहीं, बीमार तो आप है ना, आप बीमार वो है जो तंदल पई रहती हर वेले। आपको सफिया से शादी कर लेनी चाहिए, वो बीमार है, का डिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी उसको है नंबरदी की बीमारी है उसको। ये बहुत आपको सफिया से शादी कर ले। देख, शादी तो का पैगाम देना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं है, मैं किसी दी धी भैन का नाम प्रपोज करना, अगर तो तुसी बली हो फिर ठीक है,
अगर तुसी वली नहीं फिर ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा तो इसको बात में छुट्टी हुई हम बताएंगे ना। अगर ये बकवास फजूल करेगा लानती इंसान, कभी रोटियों की अहमी बार बार उस तरफ जाएगा। नहीं रोटियां नहीं चेक करता तुम्हारे बुढ़े बाबे को तो तू शादी क्यों नहीं करता है मना क्यों नहीं करता बेचारी, वो भी स्वीडन में पागल हो रही है, कल है तू भी लूला लंगड़ा, तू भी कर ले, दोनों लूले लंगड़े कर लो। और किसी की बेटी और बहन के बारे में इस तरह से किसी नहीं करना चाहिए, किसी की बेटी बहन के मतलब गलत बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये आप सजेस्ट कर सकते हैं, बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आमिर साहब किस तरह ने आमिर साहब ਦੇ ਨਾਲ इजाजत है गल करन दी? करो जरूर, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आमिर भाई मेरा पता की दिल करदा है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। जिस दिन ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ और वो चला गया गलती ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਈਮਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਬੀਸ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। हाँ ते सारियां ने छातियां चेक करनियां ने इन्हां दी मां भैणां दियां। तितली है तितली सैली उड़ के जाएगी कहां? मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी फोटो लगा के गल करना वा। वो तेरी क्या बात है यार, तू बड़ा गाने पर है दस। ये गैरत लोकी ना करया करो। साडी ताडियां मां भैणां भी साडियां ही मां भैणां ने। नहीं साडियां मां भैणां तुसीं फिर ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ। चलो ठीक है ठीक है सब दस देना, मैनू दस देना जिस दिन गल उत्ते चली जाएगी ना नक तो दस देना। चले गई तुसीं जो पटना पट लो, जाओ। आमिर साहब दिखा दियो, फिर एक फोटो दिखा दियो इन्हां नूं अज। दिखा दियो जी, दिखा दियो, ला दियो जी जड़ा इन्हां ने पटना, जो पटना पट लो। दिखाओ जी फोटो, दिखाओ आमिर भाई मैं कहना तुसीं गुस्सा जड़ा सप कढना ते कढ लो तुसीं, ते फोटो नहीं है ताडी, एक फोटो नहीं है, पूरे जमाते अहमदिया दी औरतां दी फोटोआं, टेलीफोन नंबर ने। ते और ने की फर्क पैंदा यार, ला दियो की होएगा। और गैरत लोकी तुसीं लोकी जमात अहमदिया दी औरतां ने ते बाकियां दी औरतां ने बंदे जेड़े ने बच्चे जम्मदे ने, हुण तुसीं अपना प्यो दे पेट चों निकले हो, ताडी औरतां कोई नहीं। ताडे ते पूरी जेड़ी उम्मत मुसलमान दी बुढ़ियां नचन डीआं ने यूट्यूब ते, संत तस्वीरां लाण दी भी जरूरत नहीं, बनाण दी भी जरूरत नहीं। यानी तुहानूं कोई फर्क नहीं, अपने नंबर खुद ही दे दिंदियां ने। ओए होए होए हाँ की ख्याल है? आप सुहान साहब सैंपल लो मेरे को व्हाट्सएप ते नो सुहान साहब लो, तबरक लो जी, अपने नबी दी सुन्नत दे मुताबिक तानूं बुढ़ियां दी तस्वीरां दिखाउणगे। हुसैन साहब ना करो, ये गिरे लोग ने ते बहुत गिरदे जा रहे हैं। अपने नबी दी सुन्नत दे मुताबिक करना, जो भी करना जे। ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਨਬੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਐਮ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਾ ਭੜਵਾਈ ਹੈ ਕੋਈ बेचारा। लेकिन ये गल तो नहीं अच्छी, वो देख उसकी औकात देख लो ना कि अगर वो अहमदी था और उसके पास औरतों के नंबर और तस्वीरें हैं और उसकी माए बहनें भी अहमदी थी, तो उस भड़वे को देखो कि कितने अच्छे इस्लाम में जा चुका है कि जो आके थ्रेट कर, कितना बड़ा ये फने खान आदमी है। अगर पानी सिर तो चला जाए तो मैनू दसना, मैं फिर की करांगा, नंबर दे दियांगा ते तस्वीर ला दियांगा, लम्मा साहब ना नाज़र नहीं। ये देखो कितने के गैरतमंद, ये कौन से नबी के मानने वाले इतने गैरतमंद हैं कि जो औरतों को शील्ड बनाते हैं, उनकी तस्वीरें लगा के गैरत, उनकी गैरत के साथ लेकिन किसी औरत दी तस्वीर होना एक कोई बुरी चीज है, मतलब कि औरतां दी तस्वीरें नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है मोहम्मद हुसैन साहब कि औरतें तो हर किसी के घर में है ना, होते हैं हर किसी के घर में। लेकिन तस्वीरें भी तो सारी औरतें खिंचवाती हैं दुनिया में। बात ये नहीं है तस्वीरें खिंचवाएं ना खिंचवाएं, औरत तो हर घर में है ना।
हुसैन औरत साहब तो हर आपके घर लिए में है। कंप्लेंट बन जाएगी, आपकी ब्रॉड के ऊपर किसी की बहन का बेटी का नाम ये बार बार ले रहे हैं। किसी और ब्राड पे ले लें नाम आप जाके, तो किसी और ब्राड पे आप लगा लें। नहीं यार ये छोड़ो, ये बातें नहीं अच्छी नहीं बात तो ये है, नहीं ये जो बंदा अभी आया था जातियात वाली बात को छोड़ो, इल्मी गुफ्तगू करो। नहीं ठहरो मोहम्मद हुसैन साहब, बात तो ये है कि ये बंदा कितना के गैरतमंद और कैसे बेहतरीन इस्लाम में जा चुका है, कितने कच्चे इस्लाम में ये शामिल हो गया है, औरतों के नाम, और कहता है मैं फोन नंबर और औरतों की तस्वीरें लगा दूंगा, इनका मैं डाटा लीक कर दूं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और उसकी वजह से नाउज़ बिल्लाह हजरत खलीफतुल मसीह जो हैं वो रात को जाग जाएंगे। ओ यार एक खानदान दी पहले कुड़ी ने ऑडियो लीक कर दी थी, तो केड़ा खानदान जाग गया और की ओदा अपने ही बेड़ा गर्क हो गया, कोई मुंह नहीं लगाता। नजर नहीं आते वो लोग जो खिलाफत से टक्कर लेते हैं, खुदा उनको बर्बाद कर देता है, वो छुपने को जगह ढूंढ रहे खिलाफत किहड़ी है जगह नहीं मिलती। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਗਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। हुसैन साहब कहा तो चुका किसी नाई को, किसी बकरियां चराने वाले को खुदा के खुदा ने वही पकौड़े खा के ते समोसे खा के खिलाफत है जी ना, कोई बकरियां चराने वाला जो होता है उसको खुदा के जो मैं तू नबी है तो नबी बन जाता, फिर ये भी कह लो भाई इसी तरह ही है ना, फिर चलते जाओ आगे। तारक साहब ने सही बात की, देखा पकाना बकरियां चराने वाले, तरखान, बुत बनाने वाले, ये सारे नबी बने हैं। कोई तरखान था, कोई बकरियां चराता था, कोई बुत बना के बेचता था, कंधों पे उठा के वो की है बुत ले लो। और नबी है कोई मिर्जा महमूद ते अपनी बीवियां दे नाल गैर मर्दा को जना करांदा सी, सारे हरामजादे ने तुहाडे खलीफे, वो आप लिखिया उन्हें। चलो जी रसूल अल्लाह की सुन्नत पूरी होने लगी है जी, सुनो जी देख लिया हुसैनी साहब, लो सुन लो, प्यारे नबी की प्यारी बातें। किदा कह रहे हो अलामा साहब? वसीम भाई तलू कॉल कर रहे सन, कहते सन अच्छा ठीक है, ये डाटा लीक वाले उन्होंने बुला लो जी। ठीक है। ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਪੁੱਛਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੜੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ मोहतरम की एक्सेस ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਉਂ एक्सेस ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एक्सेस ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਐਮਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਹਰ ਏਮ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ बस मेरे को लगा ना, इसलिए मैं क्या, मैं नहीं ताड़ा गंद सामने लेके आना चाहता, मना कर देता आमिर साहब ने। अच्छा आमिर साहब ने मना, ਤੁਸੀਂ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਡਾਟੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਉਹ ਡਾਟੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਟ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀ ਫਟ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਟ। ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟੇਗੀ ਬਈ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਫਟ ਜਾਣੀ। अच्छा ये दसो, ये खलीफा खुदा बनाता है क्यों हुसैनी साहब? ये बाल क्यों कर रहे हैं सामने से? नीचे कर दो।
बिस्मिल्लाह। जी बड़े अफसोस की बात है कि देखें कि इनको अगर एक्सेस है और इस किस्म की बातें करनी, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤਾਲੀ करना। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जमात अहमदिया में कितने मुनाफिकीन और दुश्मन हैं जो पैदा हो चुके हैं और उसके बावजूद कहते हैं कि जी खिलाफत की हिफाजत नहीं करनी चाहिए। यही गलती थी जो अव्वलीन से हुई और जिसकी वजह से हमारे 4 खुलफा शहीद हुए और हमने उन्हीं से सबक सीखते हुए खिलाफत की हिफाजत करना सीखी है। और अगर ना हो तो देखो कैसे कैसे सुअर अंदर घुसे हुए हैं। ये वो ही है अव्वलीन में भी ऐसे ही सुअर घुसे अपने आप को कह रहे हैं आप, ये जबाजिया कर दें जरा। नहीं जी, आपके वालिदैन को अपने आप को सुअर क्या है? क्या अपनी बेटी को सुअर कहते तुमने? आपकी बेटी, वो बेटी जो 2 मर्दों से तुमने पैदा की उसको सुअर तो नहीं बोला? लो जी, इसको साहब में आए थे और कहा कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ है। वही कहते हैं गल सही तरह भी चल रहे हैं। जरा ठहर जी, शान साहब को रसूलुल्लाह खाब में आते हैं और वो जेडी तुसी गल कह रहे हो ना, अहमदियत दी सदाकत दी, अहमदियत दे अंदर आला और बाला इखलाक दी और उन्हां दे मजबूत करैक्टर दी और ओदे विच मौजूद मुनाफिकीन दी या ऐसे लोगों की जेड़े जमात नाल तलक ते नहीं रखते लेकिन उन्होंने जमात की तरफों मुनाफिकीन होने का तोहफा मिलता रहा है। सुबह तशरीफ ले आए अल्लाह रखा साहब, उन्होंने बाद लोग हकीम साहब भी कहते ने ते वो 15 मिनट मेरे मुतलक तकरीर फरमाते रहे कि तू मुनाफिक है। तो मैं उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि तुसी बहुत अच्छी तशरीफ फरमाते हो। नहीं देखो, तुसी मुनाफिक बिल्कुल नहीं, तुसी अपने आप नूं कदी नहीं अहमदी किया। लेकिन तुसी ये भी कहंदे हो कि तुहाडा कोई फिरका नहीं। जी बिल्कुल। ऐथे वो लोग ने कि जेड़े अहमदी सन या अपने आप नूं कहंदे ने जी और ओदे बावजूद खुडा पांदे ने जी जी। और ओदी मिसाल तुसी हुणे देखिए कि मैनू एक्सेस से, अगर जमात दी एक्सेस से दे स्टिल बिलीव इन यू कि तेरे वास्ते वापसी दे रस्ते खुले ने और तू एडा बेशरम और बेगैरत है कि अगर कुछ लोग तेरे ते ट्रस्ट करदे होए। इस गल दा तलक पूरी जमात एक पासे ते एक बंदा एक पासे ते फिर उन्हां दा मुकाबला कराया जाए, कोई भी बंदा ओदा मुकाबला करे ते वो कोई अच्छा सेहतमंद मुकाबला नहीं। नहीं पूरी जमात एक पासे ते कोई नहीं हैगी। पूरी जमात नूं जेड़ा बंदा कहंदा है की कहंदा है कि जमात जिहड़ी है ओदा एक्सेस है मेरे कोल, हाँ वो एक फरीक जमात नूं करार दिंदा ते एक फरीक अपने आप नूं करार दिंदा है। कोई जमात एक पासे वो तो बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। अर्ज करदे आ ना, तुसी मैनूं पुछिया ते मैं नहीं सुन लो जी मेरे मोहतरम, गल तो सुन लो। जो उसको एक्सेस होगी वो ज्यादा से ज्यादा अपने मेरा अर्ज करना मकसद ये है कि ये मुकाबला कोई सेहतमंद मुकाबला नहीं, मुकाबला असल विच जमात दे लेकिन हुसैनी साहब इसका इल्जाम किसको देंगे आप? हमने तो ये बात नहीं शुरू की। सिर्फ असी जमात दे जेड़े है ने ना अकायद और जमात दे दावे उन्हां नूं असी ज़ेरे बहस लिया सकने आ समझण दी वजह नाल, इतराज नहीं। तो वो ठीक है आपकी बात, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन एक बंदा ऊपर आया 2 दफा उन्हें छड़ दो। मेरा अर्ज करना मकसद ये है नहीं सेहत देखे बात सुने ना, 1 मिनट हमें भी मौका दें। एक दफा वो बंदा आया, फिर लामा साहब ने क्या, उन्होंने दोबारा चक लो हुसैनी साहब, ठीक है, और आपने दोबारा क्या, आपने उसे दोबारा उठाया था सेहतमंद मुकाबले के लिए। मैं क्या शायद उन्हें कोई गल शायद वाली गल्ला छोड़ो उस अगर अलामा साहब कहते ने किसी बंदे नूं चक लो। मैं सेहतमंद माहौल दी वजह नाल जेड़ा है वो जिक्र कीता है कि
न तुम सदमे में देते ना हम फरियाद यूं हुसैनी साहब गाल सुने, सब बात सुना। इधर इस वक्त अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, जीशान साहब बैठे हुए हैं। जी जी, इनमें से कौन सा बंदा है जो सेहतमंद बात करने वाला है? मैं तो नहीं करता, ठीक है जी, मैं तो सब तो पैड़ा। नहीं तो इन दो है जो सेहतमंद बात करने वाला, अल्लामा जीशान लाई ज़हीर है नहीं, अल्लामा आमन नज़ीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लामा साहब बैठे ने, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ सवाल करना है करो ना मेरी एडी जरूरत नहीं, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पहले क्या मैं क्यों बट्टा मारा है, ਤੁਸੀਂ पूछ रहे हो ना कौन है। मैंने आपसे बात की है कि जो बंदा आया था जी जी, वो तो हो गई, वो तो गुजर गई, आ भी गया, गुजर गई है, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ, वो चला भी गया ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਹੀ ਕਰੋ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਏ ਦੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ। देखो दादा जान, अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी ਨੂੰ भी क्या था, हालांकि वो अशरा मुबशरा में शामिल थी। मेरा गाल सुन लो ना, अशरा मुबशरा में शामिल थी ना हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खतूने जन्नत। नहीं, मेरा नहीं ख्याल के। अच्छा, लेकिन उनको नबी पाक ने वफात से पहले कान में कहा था कि सबसे पहले तुम मुझे जन्नत में मिलोगे, दुनिया में बिशारत दे दी, ठीक है। उनको भी कहा कि ये मत सोचना कि तुम नबी की बेटी हो तो तुम्हें किसी चीज से इस्तिस्ना होगी, जवाब तूने अपना उस खुदा रब को खुद ही देना है, उसके सामने सब बराबर है, बंदे हैं कमजोर। सही है, ऐसा ही है। तो इनके बुजुर्गान ने जो कामयाब हो गए। मैं किसी और पहलू नाल बसाद अदब तुहाडी खिदमत विच अर्ज करना चाहता है कि इन्हां दे बुजुर्ग वो है जिहड़े फौजी अफसर है मिस्र दे विच क्लर्क है, ते उत्थे किसी अफसर दे नाल उन्हां ने अहमदीयत दी वजह नाल इन्हां नूं डिप्रेस करने की कोशिश की थी, तो उन्हें पेशगोई की थी कि तेरे फुल लै जाणगे ते मैनूं फुल लगणगे और मैं इत्थे आवांगा। ये वाकया हुण मैनूं मिल नहीं रहा, बड़ा दिलचस्प वाकया आ, ते वो फिर इस तरह ही वाकया होया। वो इन्हां दे दादा जान है अजीम बुजुर्ग थे, हम उनकी इज्जत करते हैं। ਇਹਦਾ मकसद ये नहीं है कहना कोई पाली को कुछ नहीं, नेक जिक्र ते अच्छा ही हुंदा है, वो तो कामयाब हो है ना। वो तुहाडी इजाजत दे नाल तुसीं इजाजत दिंदे हो ते मैं बयान कर देना किधर किधर करो लाजमी करो। जिथे तुसीं रोकदे हो ते मैं रुक जावांगा, इहदे च किहड़ी ऐसी गल है। जिथे तुसीं चाहो मैनूं रोक दे, मैं उत्थे ही ब्रेक ला लां। ते खादम साबरी साहब तशरीफ ले आए ने, मैं इन्हां नाल गल करना, तुसीं रुक जाओ जी। मैं क्या मैं खादम साहब नाल गल करना चाहना जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। 72 सुनने वाले ते 73 समझने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खादम साहब सुनाओ की हाल चाल है? खादम साहब जे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ। और दूजी गल है कि अजे भी वो तानू आसानी नाल हलाल करने वाली बकरी समझता है, ए याद रखना, ए जो लिटमस टेस्ट। चलो अल्हम्दुलिल्लाह करो। लो जी खादम साहब जी जी हुक्म। मैं तुहानू लगा पुट्ठी छुरी नाल ज़िबा करन, तुसीं तैयार हो जाओ। और जी ओ सुन्नत इस्माइल ते जड़ा ना असी हां करना उल जमीन। ये दसो बई किसी दी धी भैन दा इत्थे बराड़ दे उत्ते बैठ के नाम लेना चाहिए? किसी भी बराड़ से नहीं लेना चाहिए, पर जर्मनी का लाइट बड़े अफसोस की गल है कि किसी की भी धी भैन की इज्जत जी किसी बराड़ से महफूज नहीं है। पर जे असीं आखीए तुहाडी धी या साडी धी या किसी ज़ैद बकर दे इत्थे सारे धीआं वाले आ, भैणां वाले आ, जिहदी धी नहीं भैन नहीं मां ते ओहदी घर है ही है ना। ते जे आखिए भी है फलाने दा फलाने नाल निकाह कर छड़ो ते फलाने दा फलाने नाल ब्याह कर छड़ो, क्या ये अच्छा तरीका है गुफ्तगू दा? नहीं गलत, मैं तो नहीं इहनूं सपोर्ट करदा। खादम साहब ए दसो कि निकाह तो एक फितरी अमल है और रसूल और नबियां ने कीता। अगर किसी दी मां भैन दे कपड़े लाए जान और कहा जाए कि हजरत अली दी सुन्नत है, पहले वो गल निकाह दी मुका देगे। नहीं दो ही पैरेलल चल रहे हैं ना। और मेरा भी दिल करदा मैं भी खादम हुसैन साहब को लोगों नहीं वो तुसीं जरूर करियो, पर निकाह दी गल पहले मुका लईए। निकाह सुन्नत है बेशक, हां जी, पर किसी दी ते भैन दा निकाह असी
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਾ ਨਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਲੌਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਈ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ वो अच्छे हस्ब नसब की है, आपके साथ होना चाहिए। ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। हजरत क्या नाम था उनका, उम्महातुल मोमिनीन, बड़ी उम्दगी दे नाल तरबीती मराहल तय करांदा है। एक ते अल मुस्तशार और मोतमिन हुंदा है, जिहदे नाल मशवरा कीता जाए वो अमीन हुंदा है। जिन्हें रसूलुल्लाह नाल गल कीती, रसूलुल्लाह अमीन है, ओदियां गल्लां दूसरे नहीं है दसदे वे फलाना है कह गया। ते रसूलुल्लाह एक ऐसे मुकाम ते कि उन्हां कोलों ते लोकां ने रहनुमाई लैनी ही। अगर अमीन से तो साडे तक किवें गल्लां पहुंच गईयां? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਔਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇhtiyat ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੰਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ। ਨਾ ਮੰਨ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਈ ਦਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਰਜ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ, ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਦੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ नहीं करेगी इस आइडिया ਨੂੰ। अहमदीयत से बात कर लूं सर, एक मिनट बम्बासा से बात कर लूं। बम्बासा साहब जरूर करो जी। बम्बासा साहब 30 सेकंड। जी जी, ये बात मुझे भी अच्छी लगी। अगर आप बड़े दिल का मुजाहरा करते हो तो सॉरी कर ले तो बात खत्म हो जाए। सॉरी कर ले, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि अगर नेक नीति से आपने प्रपोज किया तो इसमें अगर आप कर ले तो मेरा ख्याल है बड़ा पना। अक्सर आप सॉरी कर लेते हो, जो सॉरी कर चुके हैं, ये सॉरी कर चुके हैं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ। आज का सॉरी अगली दफा करूंगा, आज नहीं। अच्छा, अभी डिस्कस करते हैं कि किसी के माँ बहनों के कपड़े उतारने और उसको करार देना। कपड़े ते उतारना निकाह दे बाद होएगा ना, निकाह वाली गल ते मुका लईए तो फिर कपड़े उतारदी होएगी। नहीं, निकाह के बगैर निकाह दा जो प्रपोजल है वो नहीं हुसैनी साहब छोड़िए, अभी निकाह की बात हो गई है, नहीं होई है। उमेर बाब के कपड़े नहीं, उमेर बाब दा इत्थे के जिक्र है, क्यों दा नाम है? आप एम्बुलेंस बन रहे हैं अभी, बाप बायस करो ना, उन्हां दा नाम आप बायस हैं अभी। एक मैनू तुसी बायस ही कह दियो, लेकिन एक मोमन औरत दा नाम ना लो बस। ए इलामा साहब ने लिया जे, मैं जिन्हें भी लिया उन्हां नु मैं ना लेना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਸ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ तो उसको पूरी तरह उछाल के डिस्कस किया गया है, मगर सर साहब दबा के आधे घंटे से डिस्कशन हो रही है। सर साहब हुसैनी साहब ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। जी जी, ख्याल करें ना जो चौहान साहब जो लैंग्वेज यूज करते हैं। एक मिनट साबर भाई, एक मिनट जी जी, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ अर्ज गुजारिश ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸਨ ਜ਼ਨੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਜ਼ਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੁਲਫਾਏ ਵਕਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਤ ਹੀ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਔਰ ਬਿਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਕਰਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹਰਕਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਸਿਸਟਰ ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। मुसलमान ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। नाराज जरूर ने बाजी, एक मिनट कश्मीरी भाई, नाराज जरूर ने, लेकिन उन्होंने कदे आई नहीं कि मैम दी ना आवा नहीं। एक बार सुनो ना, इन्होंने फरमाया कि वो खातून ਇੱਥੇ नहीं सन। जी जी, बड़ी अच्छी गल तुसीं कर रहे हो। नाराज जरूर ने, जमात मेरी यार गल ते अल्लाह दे नाम ने कर लेण दिओ। अच्छा, आमिर साहब ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੰਨੇ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਾਦ ਬਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਬਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਦੋ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਤੋਂ किसी ने जाके हरकत कर रहा है। आमिर नज़ीर साहब, मैंने आपके साथ परसों को बात की थी, मैं आमिर उसके साथ बिलाल ने से बात की, तुसी आगे ते स्पीकर ला के जो गालां कड्डियां ने मावा भैणां दियां ते नबी ते रसूलां नूं ते खलीफा नूं शुरू होए हो कि चुप ही नहीं कीते। मेरे आन तो पहले एडा वड्डा माइक तुसी लाया कि मेरा ख्याल है को 500 ओदा हैगा सी अपना मेगाबाइट दा कि बंदा कोई बोल ही नहीं सकता सी। ताडे मुंह चो चंगा, नाकी चो पानी, अखां चो पानी, ऐनक ताडी डिक थले डिक पई, एडा तुसीं बोले हो। ते की मैं ताडे नाल कोई गल कीती सी? मैं देना जी हां, दिओ मुंह चो झग ते वाकई छुट गई सी जदों मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी आ गई भाई, मुंह चो झग ते छुट्टी सी ते गालां गुलां ते बंदा मौलाना अमृतसरी ते दूसरी गल ते सुन लो ना। जवाब आ गया जवाब, ते फिर जवाब जरा खत्म कर लेना जेड़ा मैं देंगा। आहो, फिर हुन बात कर रहे हैं आप, कहां चले गए हैं? देखें अभी ये है तो फिर इसी तरह चौहान साहब बात कर रहे थे और उसकी शलवार गिल्ली करने के लिए मैंने बात कर दी।
और उसकी मेरे तारक पास साहब ਦੀ कमजोर ਸ਼ਲਵਾਰ कुर्सी ਗਿੱਲੀ है। ਕਰੋ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਗਿੱਲੀ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਗਿੱਲਾ। हाँ तो फिर तुसी चुप रहो ना, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੂਏ ਖੋਤੀ ਕਿਲੇ ਕਮਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ करना करो। वो देखो धी बहन का नाम का वो बंदा मुझे करे जिसने कभी कुछ कहा नहीं, तो जो हर वक्त ही लोगों की धीओ बहन बल्कि अपनी मुसलमान बहन के रोज सलवार उतार दिया उसने, तो क्या कि ये अली का सुन्नत है, उसको भी शर्म आनी चाहिए यार कि ये गैरत दिखाते हुए। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ बात तो ये ਸਵਾਲ है। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं गल काफी लंबी हो गई है, हुन तुसी किसी और नाल बैठे ने, मैं उन्होंने उल्टी जिबा करना सारा। मैं आयत पढ़न लगना, एक आयत सबर करो, तुसी आयत पढ़ लेना, मैनू गल तारक साहब नाल कर लेनी। आयत पढ़ो आयत। चलो ठीक है, आयत पढ़ लेने। आयत जरूरी है क्योंकि भाई ठहर जो तारक साहब सर कुरान पढ़न लगा। आयत पढ़ो जी। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਇਸਲਾਹੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। नहीं नहीं कुरान पढ़ो जी, कुरान पढ़ो, कुरान लो जी कुरान पढ़ो तो मौलाना तारक साहब कुरान पढ़ो जी, कुरान पढ़ो, कुरान ਲਓ ਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੇ जी कुरान पढ़ो जनाब, कुरान कुरान पढ़ो जी, कुरान ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ कुरान पढ़ो जी, कुरान ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਜਮਾਤ ਦੇ कुरान पढ़ो, कुरान ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਖਲੋ ਜਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋ ਜਾਓ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ। कुरान पढ़ो, कुरान ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਪਾਈ ਜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦੋ। ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਤੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਊਜ਼ੁ ਬਿਲਲਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਲੋ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਪੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਉਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸ਼ਗਲ ਹੈ। ਭੈਣ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਬੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਆਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਮਾਤੀ ਪੁਲਿਸੀ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਵੈਂਜ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਕਹਿ लो। दो बंदे हैं कि उनका जिक्र नहीं है, तो एक बंदे यार रिवेंज ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਰਿਵੇਂਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਮੈਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਜਾਮਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ भी गिल्ली कर दो, मेरा की इतराज है? उसका पजामा या शर्ट गिली करने का कोई भी तरीका अडॉप्ट किया जा सकता है, कुछ भी हो जैसे तुम करते हो। नहीं मैं जमील साहब पजामा गिला करना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕਮਾਂਡ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਕਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਾਂ। मशीना गरम मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ न करूँगा पसंद कभी।
वो छोटे दर्ज पे राजी हो, और उसकी निगाह रहे नीचे। मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज न करूँगा पसंद कभी। वो छोटी छोटी बातों पर शेरों की तरह आते हो, अदना सा कसूर अगर देखें तो मुँह में कफ भर लाते हो, अदना सा कसूर अगर देखें तो मुँह में कफ भर लाते हो। वो छोटी छोटी चीजों पर उम्मीद लगाए बैठे हों, वो अदना ख्वाहिश को मकसूद बनाए बैठे हों, वो अदना ख्वाहिश को मकसूद बनाए बैठे हों। शमशीर जुबां से घर बैठे दुश्मन को मारे जाते हों, मैदान अमल का नाम भी लो तो झींपते हों घबराते हों, मैदान अमल का नाम भी लो तो झींपते हों घबराते हों। ऐ मेरी उल्फत के तालिब, ये मेरे दिल का नक्शा है, अब अपने नफ्स को देख ले तू, वो इन बातों
अपने नफ्स को देख ले तू, वो इन बातों में कैसा है। मैं वाहिद का हूँ दिलदादा, और वाहिद मेरा प्यारा है। गर तू भी वाहिद बन जाए तो मेरी आँख का तारा है। गर तू भी वाहिद बन जाए तो मेरी आँख का तारा है। मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ न करूँगा पसंद कभी। हाँ जी आप देखो हुसैनी साहब जी जी पहले नहीं सुनी गया, नज़म ही पढ़ी है उन्होंने, क्या खूबसूरत पर उन्होंने जनाब पढ़ी है, मजा आ गया। ये मैंने भी भिजवा दिया। तोहफा सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ जी जी बिल्कुल ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ ਸੱਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਚਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਬਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਓਬੰਦੀਅਤ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਗਾਇਬ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਬਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਬੀਅਤ ਗਾਇਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਫਤਹ ਜਾ ਬਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, मैदान ढूंढते ही नहीं, बोलता ही कोई नहीं, जवाब देने को तैयार नहीं। ये बात तो सच है हुसैनी साहब कि देख लें, चाहे आपकी ब्रॉड हो या कोई भी ब्रॉड हो या यूट्यूब हो, कुछ भी हो, हमेशा तख्ता मश्क पे तो हम ही खड़े होते हैं। इससे तो ऐसे आमदा दिक्कत नहीं है, तो और गल कीती है मैं ये सुने ना। बात तो ये है कि जो बाकी फिरके हैं जो अपने आप को इस्लाम के अलमबरदार कहते हैं और रसूल अल्लाह के दीन के, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦਾਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਹਾਬੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਚ ਦਾਈ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਸਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀਅਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਹਾਬੀਅਤ, ਤੇ ਵਹਾਬੀਅਤ ਗਾਇਬ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਬੀਅਤ ਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਗਾਇਬ, ਨੋ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ, ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬਰਕਾਤ, ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। सफिया बाजी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? रहमतुल्लाह, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं, आपने कभी नज़म पढ़ी है? हुसैनी भाई, मैंने MTA के लिए पढ़ी थी और अपने जो हुआ था लजना का 100 years, उस पे साथ मिलकर किया था। कौन सी नज़म पढ़ी थी आपने? मसीह के हम गुलाम हैं,
अब पढ़ूंगी तो आप लोग भाग जाएंगे। नहीं आप पढ़े, बेफिक्र होकर पढ़े जी। नहीं वो नज़म मेरा है ही नहीं, वो तो मुझे आंटी थी जो उन्होंने कहा कि नहीं तराना है आपने अपनी तकरीर में कोई कह दिया हो, कोई लफ्ज पढ़े होंगे। मेरा मकसद है कि नज़म जो बाद लोगों की आवाज मुतरन्नम होती है तो वो पढ़ते, तो अगर ऐसा है तो आप सुनाएं बेशक। नहीं मैंने पढ़ी थी अलग से, बट वो बस 1-2 दफा ही हुई है, ज्यादा। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। कश्मीरी साहब की हाल है, तबीयत किस तरह ने? जी ज़ारी साहब सलाम, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਸਫੀਆ ਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਲੋਹਾ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ? ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਨੋਹਾ ਖਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ जी तारिक भाई, क्या आवाज कट गई आपकी? ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਬਾਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਲੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? मैं कह रहा हूँ कि आपने अंबासडर साहब को कोई को वली होने का कोई दिया आका आपने अंबासडर को? अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो बचपन में ना नमक के अंदर आयोडीन की कमी होती है, तो उसके असरात बुढ़ापे में भी आते हैं। तो दुआ कर दिया करें और इग्नोर किया करें। चलो ठीक है, ठीक हो गया। तो चलो तारिक जुबैर साहब, मेरी कौन सी लड़की है जिसकी शादी है किसी काले के साथ निकाह के बगैर? तो ये जरा कहना है वो बहुत गलत गल कहना है, किसी ने हक नहीं है गल कहना। तारिक जुबैर साहब वो भी बता दें कि मेरी लड़की ने आपको ओली सैयद साहब, डॉक्टर ओली सैयद साहब ने क्या? नहीं गलत तारिक साहब, ये गल ना बहुत बुरी गल है। नहीं तारिक साहब करो क्या सी हैं इन्होंने मौजूदगी क्या सी उन्होंने इन्हें कैसी मौजूदगी क्या होवे, कोई बुरी गल किसी दी मौजूदगी च भी कही होवे फिर भी नहीं उन्होंने दोहराओ। मैं सफिया साहब दी मौजूदगी दोबारा गल कर ले? नहीं छड़ दियो। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈलेंज ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਹੈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ? नहीं ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾएगी ना फिर वो बात। अगर मैं सफिया साहब आजकल ना 1974 की कार्रवाई हम लोग पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजा आ रहा है ना, बट थकन हो जाती है, सारा दिन आईपैड पे नजरें जुमा। वैसे सफिया बाजी आपने मेरी नकल फिर हम लोग काफी सफिया बाजी मजा आता है। जो ताजा आपने पढ़ी है उसमें क्या बात है, उसका कोई खुलासा बताए ना। सफिया बाजी ने मेरी नकल बड़ी अच्छी उतारी है, बड़ी अच्छी नकल जो है ना बड़ा अच्छा बताया कि क्या बताया, क्या मौजूद था उसमें? जो स्टार्टिंग हुई थी ना उसमें जो है ना, सबसे पहले तो एक चीज मुझे मजे की लगी कि अटॉर्नी जनरल और मिस्टर चेयरमैन एक साथ मिल गए थे और उन्होंने वहां पे किसी भी मौलवी साहब को इंटरप्ट करने की इजाजत ही नहीं दी। ठीक है, तो ये चीज नहीं तो अच्छा बीच में जो है ना कई जगह पे जो है ना, वो मुझे उनके नाम नहीं याद है, कुछ मौलवी साहिबान ना वो कहते थे कि अगर अटॉर्नी जनरल खड़े हैं तो उनको भी खड़ा करें, और अगर हजूर थक गए हैं तो नहीं, वो उन्होंने हजूर नहीं कहा था, मिर्जा साहब थक गए हैं तो उनको आप 12 बजे तक बिठाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, लॉ इसकी इजाजत देता है कि अगर विटनेस कह रहा है क्या मैं बीमार हूँ या थक गया हूँ तो हमें ये देना होगा। हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात, ये बड़ा बात ये है कि आप 100 मरतबा पढ़े ये कार्रवाई, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको उनकी जगह पे रखें। वही बता रही है। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा हुसैनी साहब मेरी भी सुन लो, मैं भी सुन सुना के आया। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਤਬੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਸੁਣਨਾ, 3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਸੁਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। सुनो आपा जी आप सुनाए। हैं जी? नहीं मैंने आपा जी को कहा है कि आप सुनाए। ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रही थी आप? अच्छा, उसके बाद ना मुझे इसलिए ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि जिस तरह यहाँ पर होता है सवाल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वहां पर जो है ना बीच में एक होता है कि आपने 1-to-1 बात कर रहे हैं और कोई डिस्टरबेंस बीच में नहीं आ रही है, और खलीफा वक्त बात कर रहे हैं तो उनकी बात जो है मुस्तनिद है, उस पर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं इसने सही जवाब नहीं दिया, उसने नहीं।
ठीक है। तो उन्होंने डिटेल में बताया इलेक्ट्रॉल कॉलेज जो वो लोग लेते ये तो बहुत शुरू में हो गया था मेरा ख्याल है। बिल्कुल शुरू में। कौन सा कॉलेज की बात की है जो खिलाफत के लिए इंतखाब नहीं वो बाजी कौन सा कॉलेज है? अच्छा, उसके बाद जो है मैं कॉलेज के दास हो कॉलेज हुसैनी साहब हेलो तो वो फिर मैंने कहा मैं वहां से कर दूं, लेकिन हम लोगों ने भी माशाल्लाह 500 पेजेस तक पढ़ लिए। बिलाल की बड़ी हिम्मत है। कॉलेज तो बता दे कौन सा है और कॉलेज तो बता आज जो पढ़ी है ना हमने वो कॉलेज तो बता दे बाजी कॉलेज ने जो है ना काफी हवाले बताए हैं और उन हवालों के अंदर उस जमाने के लोगों का बताया कि सवाल ये था कि मिर्जा साहब ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी की है, तो उन्होंने काफी सारे हवाले दिए जो कि सारे हमने पढ़े कि उसके अंदर बाकी लोगों ने भी यहाँ तक भी लिखा है ये लिख कर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर पूरा वो ठीक है उसके अंदर करते थे। ठीक है, तो उन्होंने कोई जवाब दिया उसका? नहीं, तो उन्होंने मिस्टर याया बख्तियार ने पूछा था उनसे कि ये कोई है कि वो भी तो ये करता है, ये कोई दलील है कि वो भी ये करता है तो मैं भी यही करता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको कभी भी दलील नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा। तो कई दफ़ा जिस तरह ब्रेक के अंदर जो बाकी लोग होते थे वो एतराज़ करते थे कि आपने जो है ये सवाल क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं जानकर जो है कभी कभी आधा सवाल आधा जवाब लेता हूँ और फिर आगे चला जाता हूँ। ये उसने कहा, याया बख्तियार ने कहा? याया बख्तियार ने कहा। ठीक है। अच्छा हाँ, जो मजे की चीज है ना मजे वाली चीज मजे वाली दायरे है ना इस्लाम के अंदर, एक है दो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है बार बार, एक मिल्लत इस्लामिया का दायरा और एक उम्मत इस्लामिया। आपको पता होगा नाम दूसरा जो नहीं है, एक मिल्लत में देखती हूँ फिक्र का दायरा है अपना अपना। एक उम्मत की बात है और एक मिल्लत भी करते हैं, दोनों बातें हो गई। या दायरा इस्लाम की बात कर रही होगी? ये दायरा इस्लाम के अंदर जो दायरे है ना उसमें कौन कौन कहाँ पर है। हाँ ठीक है। तो वो उसके अंदर ये है कि जो दोनों शामिल है ना इसके अंदर वो जमात अहमदिया खिलाफत जो हैं, लेकिन अब जो है जो दूसरा दायरा है मिल्लत इस्लामिया में, मिल्लत में वो शामिल हैं, लेकिन दूसरा लफ्ज क्या था मिल्लत के अलावा? ये तो दोबारा ब्रॉड लगानी पड़ेगी। अच्छा हुसैनी साहब ये दरमियान च एक गल आ गई, ये उस दौर च दो कमीशन बने सी, एक ते असेंबली से एक जस्टिस के एम क्या के एल समदानी दे साहब दे एम आर कियानी दे वो 53 दे सी ना, ये समदानी से या 74 बनाए समदानी साहब, केएम समदानी होएगा, केएम समदानी साहब। तो केएम समदानी साहब दे जड़ा वो कमीशन बनया सी अंडर, ओने रब्बा दे झगड़े दा फैसला करना सी या ओने भी ईमानियात ते जड़ा गल करनी सी? नहीं, ओने तो उस झगड़े दी रिपोर्ट पेश करनी। मैं आपा सफिया साहब ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੇਵਾਹ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣਾ कोई नहीं अच्छी गल नहीं है। वैसे खादम हुसैन साहब जिस वक्त पढ़ा जा रहा होता है ना उस वक्त हम लोग कोशिश करते हैं कि बिल्कुल कोई अनरिलेटेड बात ना हो और उसको आज से ना YouTube के ऊपर डायरेक्ट हम लोग लाइव करके और फिर बाकी जो सब डिस्कस कर रहे होते हैं ना ये लोग, ये फिर उसका असेंबली की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होता नहीं है। ठीक है, वो फिर किसी और वक्त हो जाएगा ना। अपना खादम हुसैन साहब आजकल भी जो पाकिस्तान में वो जो कर रहे हैं ना उसके साथ बरेलवियों के साथ तो बहुत ही ज्यादा उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो इनको भी असेंबली में लेके जाना चाहिए। हाँ जी, मैं तो कल मुतालबा किया कि जड़ा जड़ा फड्डे पांदा पाकिस्तान में उनको बिलाल आ गया, इसे दायरे जरा इसने
उनके भी ईमान का कहा था ये दायरे बिल्कुल सही दायरे भी है, दायरों के अंदर दायरों का बताना। वो जो 2 थी टर्मिनोलॉजीज वो क्या थी? आगे बैठ 2-3 दिन पहले का सफिया बाजी, वो पहले का बहुत दायरों के अलावा ट्रायंगल्स और वो जो क्वाड्रिलेटरल वो क्या थी? आज दो दायरा सीधी सीधी एक एडी औखी गल को रॉकेट साइंस है नहीं। वो ये कह मैं समझा देना, इन्होंने मैं समझा देना। दायरे देख गुजारिश ये है कि एक तो है दायरा इस्लाम का, और इस दायरे में कई दायरे हैं। अहल हदीस भी एक दायरा है। अहल हदीस के दायरे में अहल सुन्नत, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, अहल तशियो नहीं आते। इसी तरह अहल तशियो के दायरे में ये नहीं आते। ये हर एक के अपने अपने दायरे हैं, अपने अपने नजरियात हैं, आइडियालॉजी है। जो उसकी एक की आइडियालॉजी के साथ दूसरा आइडिया उसका नहीं सेम, उससे इत्तेफाक नहीं हो रहा। ये दायरे किसने जिक्र किए खादम साबरी साहब? ਮੈਨੂੰ नहीं जी पता, मेरे तो जम्मन तो काफी पहले दे दायरे बने। मतलब किसी किताब ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਸਾਲੇ ਚ ਆਏ ਨੇ? मैं तो फतावा रिजविया ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ 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 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? दायरा फिर असेंबली च क्यों दायरा आया? क्वाड्रिलेटरल का जिक्र है कि अस्सलाम वालेकुम सनी भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। बिलाल, दायरा इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया, तो आप मिल्लत इस्लामिया में हो लेकिन दायरा इस्लाम में नहीं हो, एम आई राइट? यही पढ़ा। 5 दायरे हैं जी, 5 दायरे हैं। अच्छा ठीक है। ते जे कोई चीका ना मारे तो मैं दस देना वा। हाँ बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। 5 दायरे, 5 दायरे हैं जी, 5 पाक ते 5 दायरे जी। दायरा इखलाक के 5 दायरे कह रहे हैं। 5 तन पाक भी ने ते 5 दायरे भी ने। बम्बास्टिक साहब वो शख्सियत ने जो अपने आम जो कहते ने ये सीरियस गुफ्तगू नहीं करते, इनसे ना किया करें आप। ये नमाजा भी ने ते इन्हां दा इन्हां नु जेडे चीका निकली ने, मैं महसूस कर सकदा। कोई टाइम वेस्ट ना करो बेटा, टाइम हो जांदा है कभी कभी बात करो। को बंदा इस तरह अब बिल्ली। अच्छा द ग्रेट बात ये है सनी साहब, ये जो बैठे हुए पहले तो साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकात। यार मनु उन्हां दे मुंह सुन लैंदो, उन्हां दे बड़ा प्यारा वालेकुम सलाम कहंदे। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। सनी साहब आप हुक्म करें। मैं क्या ये दायरे जो आप कह रहे हैं ये किसने पेश किए हैं? किसने पेश किए हैं ये दायरे? किसके हैं ये दायरे? कहाँ से आए हैं ये दायरे? हाँ जी, ये हुआ ये कि जब अटॉर्नी जनरल साहब ने पूछा ना इनसे इन फतावा जात के बारे में जो इनके अंदर है, तो उन्होंने फिर कुछ दायरे बनाए। मिर्जा नासर साहब ने। अच्छा ठीक। वहां पे उन्होंने बताया कि एक होती है तारीफ मुसलमान की, जो महजरनामे के अंदर इन्होंने अहादीस पेश की ना, बयान की। तो उन्होंने कहा कि महजरनामे में उन्होंने कोई मुसलमान की तारीफ पेश की है? जी जी, वो हदीस पेश की है मुसलमान की तारीफ के लिए। नहीं, मतलब ये कि वो स्टैंडर्ड है, वो सियासी मुसलमान की तारीफ है उन्होंने कहा। मेरा मकसद ये जो सियासी मुसलमान की तारीफ है, रसूलुल्लाह ने कभी किसी जगह सियासी मुसलमान की तारीफ की है? ये तो मिर्जा नासर साहब जाने। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें थोड़ा जा एक लुकमा मेरे को भी ले लो। जी जी। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਲਮਾਏ इस्लाम वालों या उलमाए पाकिस्तान वालों, ये आया सी कि कादियानियों को दायरा इस्लाम से खारिज किया जाए। ये मुतालबा सी, यानी ये दायरा थोड़ा पहले खींचे दायरे रखे। वो ये था ना तारिक भाई, वो ये है कि हमारा जो दायरा है ना वो एक ही है। नहीं हाँ, जो सुन ले, आप सुन लेना, सुन लेना। आप समझा दे, मैं चुप कर, आप समझाएं क्या बात हुई? नहीं मैं तो अर्ज करती है एक ही है। हाँ, लेकिन उसके रेडियस मुख्तलिफ है कि सर्कमफ्रेंस एक ही है क्या? दायरा जरा एक्सप्लेन करो ज्योमेट्री। हो दायरा जरा वो भी हो सकता है। जंबा साहब तारिक साहब चलिए आ जाओ, जंबा साहब को
जैसे ना गैलेक्सी में ना ये जो सारे सितारे ना तारों की ऑर्बिट करते हैं सन के गिर्द, तो इस तरह दायरे ना हाँ जी सूरज के जैसे गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जी, तो सारे सितारे ऑर्बिट करते हैं, वो दायरों की शक्ल में करते हैं ना ऑर्बिट। ये ना करें, ये आप वो दायरे नहीं है, वो एलिप्टिकल के बारे में आप बात कर रहे हैं, दायरे नहीं करें। एक ही है ना, गैलेक्सी एक ही है ना। वो मेरी बात सुने, ये आप ना मजाक ना उड़ाएं, मजाक नहीं उड़ाया जाए, मजाक नहीं उड़ाना। सही कह रहा हूँ, जो हमारे सन के, जो हमारे प्लानिट के जो अच्छा साहिर भाई, बात ये है कि मैं तो वो बताऊंगा जो कार्रवाई में लिखा है, रसूलुल्लाह ने क्या कहा वो आप अलग से डिस्कस कर लें। अगर आपने ये पूछना है कि ये क्या तारीफ फरमाई है, वो मैं बता देता हूँ कि जो सियासी मुसलमान की तारीफ उन्होंने बताई थी। मतलब ये नई इस्तिलाहें है ना, मेरा तो हाँ बिल्कुल 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 कह सकते हैं आप, कह सकते हैं आप। उन्होंने कहा था हमारे मजहब की बात करते हैं, जब इस्लाम की बात करते हैं उसमें जो भी फिरके मौजूद हैं अब तक, कोई भी नाम रखते हों, उसको स्टैंडर्ड पैमाने से नापा जाएगा ना। कोई एक बंदा बात करता है, कोई एक जमात की तरफ से, कोई फिरके की तरफ से बात करता है, तो हम उसको स्टैंडर्ड पे ले जाते हैं कुरान करीम के सामने कि वो उसकी तारीफ करता है कि नहीं करता, वहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। हाँ ये देखते हैं ना। हाँ लेकिन उससे ये पता चल जाता है कि ये किसी ने अपनी तरफ से कोई बनाई हुई इस्तिलाह है, नई चीज पेश की है, और एक वो स्टैंडर्ड बात है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया। हाँ तो उसमें तो कोई दायरे की बात नहीं है। अच्छा बात उन्होंने, मैं बयान करूं कि बताई उन्होंने हदीस ही है जी, लेकिन उस हदीस को उन्होंने कहा ये सियासी मुसलमान की तारीफ है। जो सियासी तारीफ है ना मुसलमान की, वो ये है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हो और किबला रुख नमाज पढ़ता हो, और आगे जो एक और लफ्ज है गालिबन ज़बीहे का लफ्ज है, मुसलमानों का ज़बीह। हाँ तो उन्होंने कहा ये सियासी, जब यहिया बख्तियार साहब ने कहा ना कि आप क्या तारीफ करते हैं सियासी मुसलमान, इन्होंने दो तारीफें बताई। तो उन्होंने कहा ये सियासी तारीफ ये है, और महजर नामे से उन्होंने पढ़ के सुनाई कि ये हमारे यहाँ है। तो उन्होंने कहा जो आप कहते हैं कि दायरा इस्लाम से खारिज है, वो फिर उन्होंने पढ़ा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब का गालिबन अनवारे खिलाफत से पढ़ा। वो अब मेरे पास नहीं है हवाला, वो मोबाइल करके पढ़ा हुआ है। हाँ। अच्छा तो उन्होंने कहा वो जो हम जिस दायरे से निकालते हैं ना आपको, हाँ, वो दायरा इस्लाम से निकालते हैं, मिल्लत इस्लामिया से नहीं निकालते हम आपको। तो इस पर याहिया बख्तियार साहब ने कहा कि आपके नजदीक मिल्लत इस्लामिया का दायरा और है और दायरा इस्लाम और है। ये जो बात उन्होंने कही है मिल्लत वाली, जी जी, मिर्जा साहब ने जब मुसलमानों को इस्लाम से बाहर निकाला है, दायरा इस्लाम से खारिज किया, तो उन्होंने मिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ये बात की इजाद है। हाँ, उन्होंने उसको दायरा इस्लाम से खारिज की बात कही है, या काफिर की बात कही है, या मुसलमान ना होने की बात कही है। हाँ हाँ, तो ये मिल्लत वाली बात पता नहीं कहाँ से आई है। ये कहा था याहिया बख्तियार साहब ने कि ये कहा था, उनका ये जो आम हम इस्तेमाल करते हैं वो तो हम तो यही इस्तेमाल करते हैं। उनका नहीं, ये जो वो उन्होंने बात कही ये आपको मैं समझाऊंगा। जैसे अक्सर यहाँ जी अपना ट्रू सीकर भाई कहते थे ना कि मैं हम आपको अपनी किताब हम समझाएंगे, तो वो कहते थे मैं समझाऊंगा आपको। तो उनका ठीक है आप समझाएं। तो फिर वो उन्होंने जब ये दो तारीफें की एक मुसलमान की कि जो सियासी मुसलमान कौन है और पक्का वाला मुसलमान कौन है, फिर उन्होंने ये दो दायरे समझाए। तो उन्होंने कहा ये बताएं कि जो हजरत मिर्जा साहब का इनकार करता है वो दायरा इस्लाम कौन से वाले से खारिज है। उन्होंने कहा जी वो मिल्लत इस्लामिया से खारिज है, सॉरी मिल्लत इस्लामिया के अंदर है और दायरा इस्लाम से खारिज है। तो उन्होंने कहा ये मतलब बेहक वक्त ये मुसलमान भी है और काफिर भी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं, वो तजावत कर गए। असल बात ये थी कि जो मिर्जा साहब को नहीं मानता, हाँ जी, उसको क्या समझना और क्या नहीं समझना ये मिर्जा साहब ने, उसकी भी दो किस्में है ना, उन्होंने उसकी भी दो किस्में बयान की हैं। एक किस्म उसकी वो बयान की है कि जो बंदा दिल से मिर्जा साहब को सच्चा माने, एक कुरान की आयत उन्होंने पेश की और फिर वो इनकार करे, वो मिल्लत इस्लामिया से भी खारिज है। और जो बंदा दिल से इनकार, दिल से सच्चा भी उसको नहीं माना, तमाम हुज्जत की उन्होंने तारीफ ये की है कि जो दिल से सच्चा मान ले एक दफा, उसको पता लग जाएगा ये बंदा सच्चा है।
उसके ऊपर तमाम हुज्जत हुई है। अदरवाइज आप उन्होंने ये कहा याहिया बख्तियार साहब ने कि अगर उसको हवाले दिए जाए, डिस्कशन की जाए, बहस की जाए तो ये तमाम हुज्जत नहीं। उनका नहीं, ये तमाम हुज्जत नहीं है। और तमाम हुज्जत वही है अगर दिल से उसको पता लग जाए कि ये सच्चा है। अगर दिल से उसको पता लग जाए कि ये सच्चा है तो फिर वो ना माने, मिल्लत इस्लामिया से भी खारिज है। अगर दिल में उसको सच्चाई जाहिर नहीं हुई तो वो फिर मिल्लत इस्लामिया से खारिज नहीं है, ये उन्होंने कहा जी। उसके अंदर जो है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना माने या किसी और नबी जो ईसा अलैहिस्सलाम को ना माने उसकी भी दो कंडीशन है। वो भी ये कि अगर वो बागी होता है ईसा अलैहिस्सलाम का और फिर इनकार करता है, फिर मिल्लत इस्लामिया से खारिज है। अगर बागी नहीं है और उसके ऊपर हकीकत नहीं खुली और वैसे इनकार करता है तो वो भी मिल्लत इस्लामिया से खारिज नहीं है जी, वो भी मुसलमान है लेकिन काफिर भी है, दोनों चीजें। और फिर एक पॉइंट पे आके ये भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर आपको हम दायरा इस्लाम से खारिज कर दें, यानी दो फिर अलग अलग ना मिर्जा नासिर साहब ने डेफिनेशंस की इसकी दायरा इस्लाम की। एक उन्होंने कहा कि द पेल ऑफ द इस्लाम, और एक ये तो अब वो एक उन्होंने कहा था कि मिर्जा अपना इसलिए तो पार्लियामेंट बिठाई थी ताकि पता चले कौन दिल तो अच्छा कौन नहीं दिल तो। उन्होंने कहा कि जैसे आप दूसरों को काफिर उन्होंने कहा आप जिस तरह दूसरों को काफिर कहते हैं, क्या ये राइट आप दूसरों को भी देते हैं कि वो भी आपको काफिर कह सकें, या अगर हम आपको दायरा इस्लाम से बाहर निकाल दें तो क्या आपको कोई एतराज होगा? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप हमें ये कह दें कि दायरा इस्लाम से खारिज है, लेकिन साथ ये भी इजाफा कर दें कि ये विद इन द पेल ऑफ इस्लाम, यानी मिल्लत इस्लामिया। उन्होंने इसका मतलब किया कि मिल्लत इस्लामिया के अंदर है और दायरा इस्लाम से बाहर है। विद इन द पेल ऑफ इस्लाम, जी जी, आउटसाइड द सर्कल ऑफ इस्लाम बट विद इन द पेल ऑफ इस्लाम। विद इन, ठीक है ठीक है, ये लफ्ज बोला उन्होंने। हाँ मैंने पता है, बोले ये लफ्ज उन्होंने बोला है, बल्कि आप सुन रहे थे शायद। मैं थोड़ा से सुना था फिर मैं चला गया क्योंकि वो तो तफसील में जाओ ना तो उन्होंने कहा कि ये तो दोनों एक चीज नहीं होती है। उन्होंने कहा नहीं, ये अलग अलग चीजें होती हैं। अगर बाल का स्किन उतारनी शुरू कर देना तो कुरान मजीद में पता है ना, वो शाह साहब पढ़ते हैं कि अगर मोहम्मद को भी ना माना जाए, तौहीद को माना जाए, और जो है वो जो पता ना को एक आयत पढ़ते हैं बहुत दफा मुख्तलिफ अकायद के लोगों नाल बहस हुई है या गलबात होती है ते अक्सर लोग मुखालफत कहते तू फलाने बंदे का ईमान साबित कर। हाँ बहुत इस्लामी तरीके बहुत बड़ी शख्सियत होती है, बल्कि शख्सियात होंदियां ने, क्या जंदर उन्होंने इस्लाम साबित करो तो है नहीं काफिर ने, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ਉਹ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। हाँ आप शरीफ इंसान व साबित, शरीफ शराफत तो फिर भी सही है, तो नॉर्मल इंसान साबित करो। हाँ मतलब इस तरह का भी एक सवाल हुआ इससे मिलता जुलता कि उन्होंने कहा कि ये तमाम हुज्जत के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि क्या आप ये समझते हैं कि अबू जहल पे तमाम हुज्जत हुआ था? उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं था मौजूद। हाँ ठीक है, वेरी गुड आंसर, एक्सीलेंट। सैनी साहब ने सारा कुछ उन्होंने को नहीं सीखा। अच्छा बाकी ये जो कहते हैं ना कि जी हमें बुलाया गया, सर आपको कोई नहीं बुलाया गया था। अच्छा जवाब भी ला लो। उत्थे बह के एक बड़े मुफक्कर ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਉਧਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ नहीं आए, दौड़ के इन्होंने राय फरार इख्तियार की थी। हाँ वो बहुत अच्छा है। नहीं हमने क्यों कहना था जब आपने कहा कि हम आना चाहते हैं तो हमने कहा ठीक है आ जाए। नहीं बिलाल नहीं साहब आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, मैं आप चौथे के आपने नहीं कहना था, आपके बड़े कहते थे। अच्छा मुझे आप मिल्लत इस्लामिया में काउंट नहीं करते आप? वो तो नहीं सी भाई जी
एक शेर है, ये लश्कर भी तुम्हारा, ये सरकार भी तुम्हारा, तो झूठ लिखो, ये अखबार भी तुम्हारा। वाह वाह वाह। वैसे बिली भाई आजकल जो ये कर रहे हैं ये टीपीएल वाले ब्रेलवी, इनको ब्रेलवी जो है इनको नहीं लेके जाना चाहिए पार्लियामेंट में? देखो ना ये भी झगड़ा कर रहे हैं। जैसे हमारा कोई भी जमात कहेगी कि हमारा कोई मसीह मौत नबी आ गया तो फिर उससे पूछा जाएगा, नबी आ गया तो तुम्हारा नबी आ ही नहीं रहा यार, इस वजह से भी तो बुलाया जा सकता है। हमारा कौन सा नबी हमारा, कौन सा जो आसमान से गिरना है? कौन सा नबी आसमान से जो आना है? नहीं, कौन सा, क्या नाम है उसका? जो आसमान से आना है, उसका कोई नाम है? आसमान से जो आना है। अच्छा, नहीं मुझे उसका नाम पता लग जाए तो मुझे बता दीजिए। जो आसमान से आना है। नहीं, वो मैंने पूछना कि वो आपका भी नबी है कि नहीं है? नहीं, जो आसमान से आना है। क्या नाम है उसका? जो भी आसमान से आना है। मुझे नहीं पता भाई, नाम बता दे, मुझे नहीं पता किसी की बात कर रहे हैं। आसमान से आना जिसने। तो बादशाह यार पार्लियामेंट से ये ना डिसाइड कर ले कि हुजूर फोत हो चुके हैं कि जिंदा है, हाजिर है। हाँ, उनको आ जाए। आपको तो आप नहीं, ये आपने क्या डिसाइड करना है? आप तो उसको लेके जाए ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसको चैलेंज करें कार्रवाई को। आप ये चैलेंज कर दें, जाए ना, चैलेंज कर दें जरा। आप ये हमारा ले जाए ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैं क्यों लेके जाऊं भाई? या तो हम क्यों लेके जाए? मैं क्यों लेके जाऊं? हम क्यों लेके जाए? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ? हम क्यों लेके जाए? ਮਾਤਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। हम तो मातम नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो। कार्रवाई पढ़ो, कार्रवाई पढ़ो, कार्रवाई पढ़ो। कार्रवाई तो ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, वो तो मुकम्मल करनी है। तो पढ़ो तो मातम तो तुम कर रहे हो। घोड़ा तो तुमने निकाला हुआ, हमने तो घोड़ा नहीं निकाला। सबसे बड़ा झूठ इनका ये है, हमने घोड़ा नहीं निकाला हुआ, तुमने निकाला हुआ। नहीं वो घोड़े नहीं, तुम घोड़ा ना कड्डो, नहीं ये जी मौलवियों को पानी पिला के, मौलवियों का सवाल ही ये हमने नहीं पानी पिला के मारा। हमने कहा यार बिल्ली हमसे क्यों शिकायत करती है? हमने किसने कहा? ये हमने को क्या मौलवियों को पानी पिला के मारा? किसने कहा? हमने तो कहा ही नहीं है। ये तो तुम्हारे वो YouTube पे है शिया आपके। वो मुकम्मल वीडियो चला सकते हैं आप यहाँ पे? हैं? चला सकते हैं वो मुकम्मल वीडियो? वो जितनी भी है तुमने नहीं सुनी? सारियां कटियां ही रखी हैं सारियां ने। वो यार मैं कट के वीडियो रख दी, कट के कई कट के चल तू चला दे यार पूरी अगर है। मैं तो नहीं वेखी, तुसी कह रहे हो पूरी हैगी। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੱਟ ਕੇ अच्छा खत्म नबूवत की बात हुई है? बिल्कुल हुई है। कि नबी करीम को आप आखिरी नबी मानते हैं? कि बिल्कुल हुई है। तो फिर क्या जवाब दिया? वो तो अब वहां पे पहुंचेंगे तो पता लगेगा। अच्छा पहुंचे नहीं तो बात कैसे हुई है पता आपको? क्योंकि एक दिन यहाँ पे सानी साहब की बराड़ पे मुझे, सानी साहब याद है आपको वो हवाला जो उन्होंने आयोडीन तो बगैर सानी साहब वो हवाला याद है, ईसा को मानता है, मोहम्मद को नहीं मानता। उसके आगे बिल्कुल वो जो इंटरप्रिटेशन वाला था उसी के आगे चलते ना, एक सफा छोड़ के आगे, तो वहां पे ये शुरू हो जाती है खातिमुन नबीय्यीन वाली बात। ठीक है, वो कब पढ़नी है आपने? आज तो अब देखेंगे, जब बारी आएगी तो पढ़ लेंगे। तो बारी वेली है, बाजी सफिया भी बैठी, चले जाओ पढ़ना शुरू कर दी। मेरा ख्याल है मुंह नहीं लाया किसी दूजी बराड़ थे। नहीं मैंने कोई नहीं लांदा, नहीं आ गए, मैं आप मानना कोई नहीं लांदा। चलो भाई उधर बात करेंगे जाके। अभी तो मुझे हक पहुंच गया आपकी नकल उतारने का, आपने मेरी उतारी है आज बड़ी प्यारी करके। नकल कैसे भी ला सकते, बस हरामजादा ना आखियो फिर जवाब। नहीं तो पक्के तुझे हरामजादे तो है, आपने हम नाम मने आप नहीं हरामजादे ते हो ने जेड़ा दज्जाल कज़्ज़ाब दे पैरोकार ने। इसी तो तुसी भी तो दज्जाल कज़्ज़ाब दे पैरोकार। असि मिर्जा साहब में दज्जाल कज़्ज़ाब ही आते हैं। तारीख कज़्ज़ाब शर्मी पे ये आया है तुम्हारा लौंडा। तारीख कज़्ज़ाब दज्जाल है, फिर दज्जाल कज़्ज़ाब तो भाई आपके हैं भाई, सारे आपके भी हैं। क्यों नीचे उतार दे? सारे भी आपके। उसको तुम नहीं रोका, उसकी जुबान भी है सारे कज़्ज़ाब और दज्जाल। उसके पेट में जो दर्द हो रही है, दज्जाल कज़्ज़ाब बड़ी आ रही है, कभी उधर आता है आके ड्रामे लगाता है, कभी इधर आके ड्रामे लगाता है। इसके साथ बाजी बैठ के पढ़ा करें, जो हमारे काबरीन को, हम जिनको नबी मानते हैं उनको क्या कह रहा है, पढ़े। हमारे काबरीन ने हमारे काबरीन को नहीं कहा, वो तुम्हारे साथ लगा हुआ है, तुम उसके साथ लगे हो। क्यों कहा उसने? वजह वो तुम्हारे साथ लगा हुआ है, क्यों कहा मुझे? तो उसको बात करो, उसको करो, उसको गालियां दो उसको। वजह क्यों कहा उसने? आप बिल्ली साडा शेर है, वो कहेगा दोबारा, मैं दोबारा कहूंगा बिल्ली साडा शेर है। हुसैनी भाई मैं इतने दिनों से इसके साथ पढ़ रही हूँ ना,
बहुत सच में, ज्यादा अगर लेकिन अगर कोई मुसलसल छेड़ रहा है, मुसलसल तंग कर रहा है, बहुत और अच्छा हमारे पेड़ है, काबरीन हाँ। को अगर कोई बात पढ़वाएगा तो सारा नुकसान और अल्लाह गुनाह की उन्हीं के सर पे कसम होगा ना, आप जो छेड़ इतना तंगवाते हैं। इतना किसके साथ लगा हुआ है इतना अच्छा पढ़ती हैं आप, इतना अच्छा पुरसोस पढ़ती हैं। बादशाह की यार गल सुन आपा जान, बात ये है कि ये ठीक है, बात बच्चा ऐसी बात नहीं करता। जो कुछ आप अमर हक साहब ये हुई है बस उसके